How are you? I hope you all are doing well. So welcome to today's maths class, and today we'll do algebraic expression and their factorization. Algebraic expression. An algebraic expression is the combination of constant and literal connected by the sign of the fundamental operation. For example, 5x square minus y, 3x square y plus 7x minus 4ab plus 7ab square. Constant. A symbol having a fixed numerical value is called the constant. For example, 7, 9, minus 2, pi, etc. ये क्या हो जाएंगे? Constant. Next is variable. Variable means whose value keep changing. A quantity which can be various numerical value is called variable. For example, we know that the parameter p of a square is given by p equals to 4a, where a is the side of square. Hence 4 is constant whereas p and a are variable, because जो पैरामीटर है उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी अकॉर्डिंग टू साइड, एंड जितनी साइड है उसकी भी वैल्यू चेंज होती रहेगी. सो बोथ आर वेरिएबल. नेक्स्ट इज टर्म्स. Various part of an algebraic expression which are separated by the sign of plus or minus are called the terms. For example, 4x cube plus 7x square minus 3x plus 9. This is an algebraic expression consisting 4 terms, 1, 2, 3 and 4. Clear? They are separated by sign of plus and minus. Next, polynomials. An algebraic expression in which the power of variable are all whole number is called polynomial. For example, x square plus 7, x square minus 5 upon 2xy plus y square. So here the exponential power जो है that is whole number. 2 यहाँ पे 2 है, 2 1 1. So these are polynomial. Now degree of polynomial in one variable. The degree of polynomial in one variable is the highest power of the variable. For example, 4x minus 7 is a polynomial and x of degree 1. 7x square plus 5x minus 9 is a polynomial in x of degree 2, because जो variable है उसके highest power क्या है? Here 2 and यहाँ पे क्या है? 1. So highest power is 2, तो degree हो जाएगी 2. Same यहाँ पे क्या हो जाएगी? Degree 3, because highest power is 3. So polynomial in x of degree 3. Next, degree of polynomial in 2 or more variables. In a polynomial in more than one variable, the sum of the power of variable in each is the compound, and the highest sum so obtained is called the degree of polynomial. For example, 6x cube minus 2x square y square plus 2x square plus 7y square is a polynomial of degree 4 in x and y. ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 plus 2, because दो वेरिएबल है तो ये क्या हो जाएगा? 2 plus 2 that is 4. Next, 9x square y cube minus 3x square y plus 6 minus root 7x cube is a polynomial of degree 5 in x and y. 2 plus 3 क्या हो जाएगा? 5. Next, constant polynomial. A polynomial consisting of constant term only is called the constant polynomial. The degree of a constant polynomial is 0. For example, 3, minus 2, 5, etc. Next, linear polynomial. A polynomial of degree 1 is called linear polynomial. For example, 3x plus 5, 9x minus 7 upon 9. All these are linear polynomial. Next, quadratic polynomial. A polynomial of degree 2 is known as the quadratic polynomial. For example, 5x square plus 9x plus 8 and 9x square plus 7x plus 2. All these are quadratic polynomial. Next is cubic polynomial. A polynomial of degree 3 is called cubic polynomial. For example,
7x cube plus 2x square plus 6x minus 5 and 2x cube plus x square minus 7x plus 11. All these are cubic polynomial. In previous class, we have learned about the algebraic expression, their addition, subtraction and multiplication. Using multiplication of binomial, we obtain the following result. a plus b square equals to क्या हो जाएगा? a square plus 2ab plus b square. a minus b का whole square, that is a square minus 2ab plus b square. a square minus b square equals to क्या हो जाएगा? a plus b and a minus b. You have to learn all these identities. Clear? Next, quick funda. Algebra is the branch of mathematics which deals with the relation and properties of the number by means of letters and other general symbols. These results are mentioned in class 7 and known as identities as they are true for all values of the variable a and b. Example लेते हैं. Use the above identities to find the following. First, 2a plus 5b का square. Now, ये किस फॉर्म में है? a plus b का स्क्वायर की फॉर्म में है. So we'll write a square plus 2ab plus b square. So first हो जाएगा 2a का स्क्वायर. यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? 2a एंड b की वैल्यू क्या है? 5b. So फर्स्ट हो जाएगा a का स्क्वायर मीन्स 2a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a इंटू 5b प्लस 5b का स्क्वायर. सो 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर प्लस 20ab प्लस 25b स्क्वायर. क्लियर? नेक्स्ट इज सम अदर आइडेंटिटीज. x प्लस a x प्लस b. तो क्या हो जाएगा? x मल्टीप्लाई बाय x प्लस बी एंड a मल्टीप्लाई बाय x प्लस बी. एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी एंड प्लस ए बी. अगर इस फॉर्म में है x प्लस ए एंड x माइनस बी, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए माइनस बी माइनस ए बी. ये आइडेंटिटी हो जाएगी एंड ये वाली. नेक्स्ट इज क्विक फंडा. If you want to confirm that your answers are correct, you can multiply the factor together and check whether you get back the given expression. Next is x minus a, x minus b equals to क्या हो जाएगा? x minus b minus a, x minus b equals to x square minus bx minus ax plus ab. That is equals to x square minus x a plus b प्लस ए बी. इफ x माइनस ए एंड x प्लस बी है, इस फॉर्म में है, तो कैसे लिखेंगे? x प्लस बी माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए बी. और वी कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी माइनस ए बी. एग्जाम्पल लेते हैं. फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट. फर्स्ट इज x प्लस 7 एंड x प्लस 9. सो किस फॉर्म में है? x प्लस a एंड x प्लस b की फॉर्म में है. x की वैल्यू x है, a की वैल्यू 7 एंड b की वैल्यू 9. सो हम इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 9 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 9. सो x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7x प्लस 63. x square plus x 9 plus 7 plus 63, that is equals to x square plus 16x plus 63. So this way we can use the identity. Clear? Next, points to remember. X plus a multiplied by x plus b equals to x square plus a plus b x plus ab. a square minus b square equals to हो जाएगा a plus b a minus b. a plus b का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. a माइनस b का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. नेक्स्ट इज लर्निंग टारगेट 5.1. कंप्यूटेशनल थिंकिंग. फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट. फर्स्ट इज x plus 8 and x minus 2.
सो किस फॉर्म में है, x प्लस ए एंड x माइनस बी की फॉर्म में है। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 8 एंड मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2। सो वी कैन राइट x को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2 प्लस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2 से। क्लियर? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8x, ये हो जाएगा माइनस 16। और वी कैन राइट एक्स स्क्वायर, x कॉमन ले लेंगे प्लस x कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2 प्लस 8 एंड माइनस 16। सो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 एंड प्लस 8 क्या हो जाएगा 6, सो प्लस 6x माइनस 16। दैट विल बी आवर आंसर। क्लियर? सो यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल अदर क्वेश्चंस. Next, identity for the square of trinomial. Let a plus b equals to x. a plus b plus c का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x plus c का स्क्वायर equals to x square plus c square plus 2cx. a plus b का स्क्वायर plus c square plus 2ca plus b. Subtracting the value of x. a square plus b square plus 2ab plus c square plus 2ca plus 2bc. a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. Or we can write a square plus b square plus c square plus 2ab plus bc plus ca. So अगर इस फॉर्म में है सो सर क्या हो जाएगा हमारा, ये सम स्पेशल केस a माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर लेट a प्लस सी इक्वल्स टू x. हमने यहाँ पे क्या किया है, a प्लस सी की वैल्यू रखी है, दैट इज इक्वल्स टू x. सो a प्लस सी माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x माइनस बी का स्क्वायर. x किसके इक्वल हो गया, a प्लस सी के, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2bx प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस सी का स्क्वायर माइनस 2b a प्लस सी प्लस बी स्क्वायर. a प्लस सी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc. a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ca प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab प्लस bc माइनस ca. नेक्स्ट a प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर. लेट a प्लस बी इक्वल्स टू x, सो x माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा x स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx इक्वल्स टू a प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ca प्लस b. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ca माइनस 2bc. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ca माइनस 2bc. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ca माइनस bc. नेक्स्ट a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर. b प्लस सी इक्वल्स टू x है, तो क्या हो जाएगा a माइनस x का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax. a स्क्वायर प्लस b प्लस सी का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस सी दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc माइनस 2ab माइनस 2ca दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस bc प्लस ca. नेक्स्ट इज माइनस a प्लस b प्लस c का स्क्वायर. सो b प्लस सी दैट इज इक्वल्स टू x, तो क्या हो जाएगा x माइनस a का होल स्क्वायर. x माइनस a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2xa
सो बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a बी प्लस सी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ca, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस bc प्लस ca. सो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे कि वैल्यू रख के a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको हमने इस फॉर्म में लिखा एंड देन इसको सॉल्व किया तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा इनमें, इस तरीके से. क्लियर. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं. राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म. 3x प्लस 2y प्लस z स्क्वायर. दैट मीन्स हम कैसे लिखेंगे 3x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर. ये है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर की फॉर्म में. सो इसको कैसे लिखेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b2bc प्लस 2ca इस फॉर्म में लिखेंगे. सो ये क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 4yz प्लस 6zx. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट्स टू रिमेंबर. a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca. क्लियर. नेक्स्ट इज लर्निंग टारगेट 5.2 computational thinking. Write the expansion of each of the following. First is x plus 2y plus 3z का square. So x plus 2y plus 3z का square. Clear? किस फॉर्म में आइडेंटिटी कौन सी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर. सो हम इसको लिख देंगे यहाँ पे x का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी यानी x इंटू 2y प्लस 2 कॉमन बाहर ले लिया है ए बी इंटू बी सी यानी 2y इंटू 3z प्लस सी ए यानी 3z इंटू एक्स. ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 3z का स्क्वायर हो जाएगा 9z स्क्वायर प्लस 2x इंटू 2y क्या हो जाएगा 2xy प्लस 3 2 6 yz प्लस 3xz. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर प्लस 2 2 4 xy प्लस 12yz प्लस 6xz. दैट विल बी आंसर. क्लियर. तो हमें आइडेंटिटी देखनी है कि कौन सी आइडेंटिटी का यूज हुआ है एंड उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है. सो यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस. नेक्स्ट इज आइडेंटिटी फॉर द क्यूब ऑफ बायनोमियल. सो a प्लस बी का क्यूब वी हैव a प्लस बी का होल क्यूब है दैट मीन्स a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी 3 टाइम्स हो गया. इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a प्लस बी एंड हमने क्या कर दिया a प्लस बी का स्क्वायर. क्लियर. सो a प्लस बी आ गया. a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इस फॉर्म में लिख दिया. ना इसको सॉल्व किया a को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे से एंड b को इस पूरे से करेंगे. जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. और वी कैन राइट a क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab हमने कॉमन ले लिया a प्लस बी. सो a प्लस बी का होल क्यूब दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी. a क्यूब प्लस बी क्यूब है तो हम कैसे लिख सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab प्लस a प्लस बी दैट आर डिफरेंट. a प्लस बी का होल क्यूब एंड a क्यूब एंड b क्यूब अलग अलग है. a प्लस बी के होल क्यूब को हम इस फॉर्म में लिखेंगे एंड
ए क्यूब प्लस बी क्यूब को इस फॉर्म में. क्लियर? नेक्स्ट a minus b का क्यूब वी हैव, so a minus b का होल क्यूब we can write a minus b, a minus b, a minus b 3 times, और we can write a minus b and a minus b का स्क्वायर. इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. सो a माइनस b का होल क्यूब को हम इस फॉर्म में लिखेंगे एंड a क्यूब माइनस b क्यूब को हम इस फॉर्म में. क्लियर? एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल 1, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म. फर्स्ट इज 4x प्लस 5y का होल क्यूब. सो वी कैन राइट इट 4x का क्यूब प्लस 5y का क्यूब प्लस 4x प्लस 5y प्लस 4x प्लस 5y. हमने आइडेंटिटी का यूज़ किया है. 4x प्लस 5y का होल क्यूब है, उसकी आइडेंटिटी का यूज़ किया है. इसको सॉल्व करेंगे 64x क्यूब प्लस 125 y क्यूब प्लस 60xy प्लस 4x प्लस 5y. ये हो जाएगा 64x क्यूब प्लस 125 y क्यूब प्लस 60xy को मल्टीप्लाई करेंगे 4x से तो क्या हो जाएगा 240x स्क्वायर y प्लस 300xy स्क्वायर. क्लियर? सो फर्स्ट वी हैव टू चेक कि किस फॉर्म में दे रखा है एंड विच आइडेंटिटी वी हैव टू यूज एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू सॉल्व. नेक्स्ट पॉइंट्स टू रिमेंबर. a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी. a माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी. a क्यूब प्लस बी क्यूब दैट इज इक्वल्स टू a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3a a प्लस बी. a क्यूब माइनस बी क्यूब दैट इज इक्वल्स टू a माइनस बी का क्यूब प्लस 3ab a minus b. So you have to learn all these identities. Clear? Next is learning target 5.3. Computational thinking. Write the expansion of the following. First is 3x minus 2y का whole cube. 3x minus 2y का, so 3x minus 2y का होल क्यूब है. दैट मीन्स a माइनस b का होल क्यूब. आइडेंटिटी है, इसको यूज करेंगे किस फॉर्म में लिखेंगे a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b. सो a क्यूब हो जाएगा 3x का क्यूब माइनस b क्यूब 2y का होल क्यूब माइनस हम लिखेंगे 3ab 3 इंटू 3x मल्टीप्लाई बाय 2y. ठीक है, 3ab एंड ब्रैकेट में लिखेंगे a माइनस बी यानी 3x माइनस 2y. अब सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 3 3 9 27 x क्यूब माइनस 2y का होल क्यूब है 2 2 4 4 2 8 8y क्यूब माइनस ये हो जाएगा 3 3 9 9 2 18 x y and 3x minus 2y. Now 27 x cube minus 8y cube माइनस 18xy को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54x स्क्वायर y माइनस माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 36x y स्क्वायर. ये हो जाएगा हमारा आंसर. Practice all the questions. We move to next topic, that is to find the product of a plus b, a square minus ab plus b square. So we have a plus b multiply by a square minus ab plus b square. क्या हो जाएगा, a को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे से a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर
देन b को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे से, तो ये क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस a स्क्वायर b प्लस ए बी स्क्वायर, देन a स्क्वायर b माइनस ए बी स्क्वायर एंड देन माइनस b क्यूब, दैट इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब. a स्क्वायर b है एंड ये और ये कट जाएंगे, ए बी स्क्वायर एंड माइनस ए बी स्क्वायर ये कट जाएंगे, तो क्या बच गया a क्यूब प्लस b क्यूब. क्लियर? Thus we have the following identity, a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस b मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. सो अगर इस फॉर्म में है तो हम इस तरीके से एक्सपेंशन कर सकते हैं. क्लियर? नेक्स्ट, टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ a माइनस b a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. सो वी हैव a माइनस b a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. पहले a को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे से, देन माइनस b को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे से. सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, a क्यूब माइनस b क्यूब. दस वी हैव द फॉलोइंग आइडेंटिटी, a क्यूब माइनस b क्यूब को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a माइनस b मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. एग्जाम्पल लेते हैं, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, a प्लस b a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. सो सोल्यूशन हो जाएगा a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. अभी हमने इसको सॉल्व किया था, इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब की फॉर्म में. क्लियर? अगर a क्यूब और b क्यूब को हम एक्सपेंशन करेंगे तो इस फॉर्म में आएगा. सो वी कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो. क्लियर? नेक्स्ट इज पॉइंट्स टू रिमेंबर, a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल्स टू a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी. a क्यूब माइनस b क्यूब दैट इज इक्वल्स टू a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी. Next is learning target 5.4. Computational thinking. Find the following products. First is 1 minus x, 1 plus x square. So, किस फॉर्म में लिखा है, आइडेंटिटी है a क्यूब माइनस b क्यूब. यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 1. सो 1 का क्यूब हो जाएगा 1 माइनस b की वैल्यू x, सो x का क्यूब. राइट इन फॉर्म ऑफ 1 माइनस x क्यूब. Clear? Practice all the questions. Next is factorization of algebraic expression. In previous class, we have learned factorization of algebraic expression by using some basic concepts. For example, a plus b का square equals to a square plus b square plus 2ab. a minus b का square that is a square plus b square minus 2ab. a square minus b square equals to a plus b, a minus b. Next is factorization. The process of writing an algebraic expression as the product of two or more algebraic expression is called factorization. Next is factors. The algebraic expression that may be multiplied to obtain the given algebraic expression are called factors of the given expression. When the expression is of the form x square plus ax plus b, we know that x square plus a plus b x plus ab equals to x plus a multiplied by x plus b. We take two numbers a and b such that their sum is the coefficient of x and their product is the term independent to x. Example लेते हैं x square plus 8x plus 15. So we have to factorize this expression. किस तरीके से करेंगे, मिडल टर्म क्या है 8x. सो हमें इसको इस तरीके से फैक्टराइज करना है 8x को कि व्हेन वी मल्टीप्लाई द नंबर वी गेट 15 एंड व्हेन वी ऐड द नंबर वी गेट 8x. सो 5 3 से क्या होता है 15, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 एंड वी ऐड दैट 5x प्लस 3x दैट इज 8x. सो राइट x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3x प्लस 15. सो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15. नाउ x कॉमन ले लेंगे इन दोनों में.
So ये जाएगा x plus 5. Here we'll take 3 as a common, x plus 5. So there are two factors. एक हो जाएगा x plus 5 and other is x plus 3. Clear? The two numbers are 5 and 3. 5 plus 3, that is equals to 8, and when we multiply them we get 15. Next example लेते हैं factorize a square plus 6a plus 5. So the given expression is a square plus 6a plus 5. We'll try to split the middle term जो है 6a. We'll try to split 6 into two parts. अगर हम sum करें तो we'll get 6a and when we multiply we get 5. Clear? So किस तरीके से करेंगे? 5 1 सा क्या होता है? 5 and 5 plus 1 6. So a square plus 6a plus 5 equals to हो जाएगा a square plus 5 plus 1 a plus 5. So a square plus 5a plus a plus 5. Now a कॉमन ले लेंगे तो क्या रह जाएगा a plus 5 and यहाँ पे हम 1 कॉमन लेंगे तो a plus 5. So two factors हो जाएंगे. One is a plus 5 and other is a plus 1. So this way we can factorize. Clear? Here some more examples are given. आप इसको practice कीजिएगा. Next is learning target 5.5. Computational thinking. Factorize the following expression. First is x square plus 9x plus 20. So x square plus 9x plus 20. So मिडिल टर्म कौन सी है? मिडिल टर्म इज 9x. सो हमको इस तरीके से फैक्टराइज करना है. व्हेन वी मल्टीप्लाई वी गेट 20 एंड व्हेन वी ऐड वी गेट 9x. सो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 4x प्लस 20. 5 4 से क्या होता है 20. x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस 20. Now we'll take x common, x plus 5, and here we take 4 as a common. So x plus 5. So factors हो जाएंगे x plus 5 and another is x plus 4. This is our answer. So this way we will factorize. You have to practice all the question. Next is one more identity to find the product. A plus b plus c multiplied by a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca. We have a plus b plus c, a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca. So a ले लिया हमने यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. अब b को हमने मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरे से एंड देन c को, एंड तो ये क्या आ जाएगा a क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी सी माइनस सी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर. When we solve this, we'll get a cube plus b cube plus c cube minus 3abc. So a plus b plus c multiplied by a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca can be written in this form. Clear? Quick funda. If a plus b plus c equals to 0, then a cube plus b cube plus c cube equals to 3abc. If a square b square plus c square minus ab minus bc minus ca equals to 0, then a cube plus b cube plus c cube equals to 3abc. Let's take an example. Example 1. Factorize each of the following expression. First is x cube plus 8y cube plus 64z cube minus 24xyz. So solution हो जाएगा हमारा x cube plus 8y cube plus 64z cube minus 24xyz. So we can write a cube plus b cube plus c cube minus 3
ए बी सी। सो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। सो इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए की जगह आ जाएगा एक्स, बी की जगह 2y, सी की जगह 4z, ये हो गया। फिर ए स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह 4y स्क्वायर, सी स्क्वायर की जगह हो जाएगा 16z स्क्वायर। देन ये आ जाएगा माइनस 2xy माइनस ए बी की जगह माइनस बी सी एंड माइनस सी ए। सो वी कैन राइट इन दिस फॉर्म। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट्स टू रिमेंबर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, देन a cube plus b cube plus c cube equals to 3abc. If a plus b plus c equals to 0, then a cube plus b cube plus c cube equals to हो जाएगा 3abc. If a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus c equals to 0, then a cube plus b cube plus c cube equals to हो जाएगा 3abc. Next is learning target 5.6. Computational thinking. Factorize the following expression. First is p cube plus 8q cube plus 64r cube minus 24pqr. So ये किस फॉर्म में है, a cube plus b cube plus c cube and minus 3abc. So इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a plus b plus c multiply by a square b square plus c square minus ab माइनस बी सी माइनस सी ए। सो इस फॉर्म में हम लिखेंगे a की वैल्यू है p, b की वैल्यू है 2q एंड c की वैल्यू है 4r। नाउ हम लिखेंगे सबसे पहले इसको लिखेंगे हम a प्लस बी प्लस सी, यानी कि p प्लस 2q प्लस 4r। क्लियर? देन हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर, a स्क्वायर यानी p का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा 2q का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी कि 4r का स्क्वायर, देन माइनस ए बी यानी p इंटू 2q, देन माइनस बी सी यानी 2q मल्टीप्लाई बाय 4r, देन माइनस सी ए, माइनस ये हो जाएगा 4r इंटू पी। ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा p प्लस 2q प्लस 4r एंड ये मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर प्लस 16r स्क्वायर माइनस 2q इंटू पी हो जाएगा माइनस 2pq माइनस 4 टू ज़ा 8 qr एंड माइनस 4pr। दिस इज आवर आंसर। तो इस फॉर्म में लिखेंगे, इस तरीके से हम आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। आइडेंटिटी हमने कौन सी यूज़ की है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। उसको फॉर्म में लिखा हमने a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। Clear? So you have to practice all the question. Here we end the chapter. I hope you understand the chapter well. Now you have to practice it.